साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. लाए मेरी मन्नतें, पूरी हो तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी।
छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा चलिए प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं, खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो, सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है ओ, सागर किनारे। जागे नजारे जागी हवाएं, जागे नजारे जागी हवाएं, जब प्यार जागा जागी फिजाएं, पल भर को दिल की दुनिया सोई
जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे कि Everybody please sit. With the AV where we'll show his life journey of 75 years. So I'll ask the mic to Pallavi and she is going to take it forward. Hi, good evening everyone. So as you all know कि आज पापा की 75th बर्थडे है और उस ओकेजन पे we want you all कि आप लोग आके उनकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल जर्नी देखिए. So we have prepared a small AV for that and so we are going to start. Please come forward. Please सारे आगे आ जाइए. Enjoy the show. We have tried a lot to make you enjoy everything. So we are going to start the AV now. उधर भी बता दो जो पहले दिखाई देगा सीधा पीछे वाला को नहीं दिखाई देगा. Good evening everyone. Myself Pallavi, daughter of Shri Om Prakash Taneja. Today I feel privileged to walk you through my dad's journey of 75 years. Born in Rewari on 11 July 1948 to a traditional Indian family, Shri Om Prakash Taneja, son of late Shri Chandiram Taneja, a headmaster by profession, and mother Srimati Shanti Devi, a homemaker, had a very humble beginning. He is brother to 4 sisters. He studied in Rewari till 5th standard and then moved to Delhi in 1959. He completed his higher secondary in science. Although he got selected for BE, he could not pursue it due to sudden demise of his father, but that didn't stop him from studying further. Instead, he did a diploma course in mechanical engineering, supported by his mother-like elder sister, Miss Parvati Taneja, who was inspector of schools in Delhi government. He was ambitious and wanted to grow, so he continued his studies while working partially and completed his AMIE. He started his career's first innings in 1968 and worked in tool-room engineering companies for 6 years. In 1973, he joined a company well known for setting up breweries and wineries in India. He had the privilege of working with Dr. Garetti, wine technologist of Luigi Bosco of Italy, and under his guidance, he commissioned the first wine plant of India, named Baramati Grape Industries Limited, owned by Pawar family. In 1975, he joined Hindustan Electrographites Limited, now known as HEG,
and within 2 months after a crash course in French language, he had an opportunity to go to France for training of technology transfer and detailed engineering. In 1976, he got married to beautiful wife Shakuntala Taneja, who was principal for 25 years in MDH school, and became a proud father of 2 daughters, Pallavi and Garima, and father-in-law of 2, Anuj and Hemant. He worked in HEG on various projects like vendor development, monitoring progress at suppliers end, operation and training of workforce of major workshop called JEP, that is Green Electrode Plant. He was also given the additional responsibility by the management for safety of the plant. As a secretary of the safety cell, he initiated several awareness programs related to safety requirement for staff and workers. Just after the Bhopal gas tragedy in 1984, the chairman of HEG selected him for new venture of the group, India Insulator Limited. He went for technology transfer of toughened glass insulators at Electrovidro Brazil and Servor France under the guidance of Mr. Duroy. At India Insulator Limited, he commissioned assembly plant of toughened glass insulators and supplied 2.0 lakh insulators to NTPC and successfully coordinated for type test at competitors' high voltage lab near Cuddalore, Tamil Nadu. He was then called to head office to lead construction team at NTPC Dadri site. He also coordinated for bidding of Tawa Hydro project at Madhya Pradesh. Later, he joined HEG at head office for marketing of sponge iron graphite electrodes and specialties, and was also given the responsibility of coordinating Mandiri plant activities, coal blocks and coal linkages, thermal power plant for group companies. He actively participated in Sponge Iron Manufacturers Association and became the founder member of Indian Captive Power Producers Association. After completing 33 years of service with LNG Bhilwara Group, he superannuated in 2008 but was given a year extension. In 2010, he was again called by the group for wind power projects, and by 2013 commissioned 57 megawatt project of group companies. In 2011, he was invited to Bhopal on the occasion of Golden Jubilee celebrations of the group and was facilitated for his service of more than 25 years with the group. In 2015, he joined Indian Wind Turbine Manufacturers Association IWTMA and coordinated all activities with ministries and other entities. A project of scheduling and forecasting for Rajasthan and Winderji 2017 event were highlights of this period. Currently, he is associated with IWTMA, where he is in process of creating and updating the data repository of wind from 1990 onwards, running in more than 40,000 pages. He is also an advisor with Skill Council for Green Jobs. During the period of working for renewable energy, he has participated in various events, seminars and conferences of the sector. Till date, he has successfully completed 55 years of service. But that's not the end. He is still enjoying his second innings as a consultant, putting his expertise and experience in work. We wish him luck and success for his second innings. In the end, I would like to thank you all for being part of my dad's journey of 75 years. Thank you so much for being here today and sharing this proud moment with us. Thank you. Hats off to Pallavi to showcase that. And Uncle, we are proud of you. So now we are done with the professional life. Now we'll move forward. So Masi, she is my Masi by the way, for everybody. So she is going to sing a song for our 75th birthday. First of all, I welcome you, and at the same time, I am very much thankful to you for joining us at the 75th celebration of Spoon's birthday. At this auspicious occasion, I also want to sing a song. तुम्हें आज क्या दें
दुआ के सिवा। तुम्हें आज क्या दें शुभकामनाओं के सिवाय, तुमको हमारी दुआ लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें आज क्या दें दुआ के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मुरादें हो पूरी वो पूरा हर सपना, मुरादें हो पूरी वो पूरा हर सपना, मगर तुम हमेशा हमें याद रखना। मुकद्दर तुम्हारा सदा जगमगाए, तुमको हमारी दुआ लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें आज क्या दें दुआ के सिवा, तुम्हें आज क्या दें शुभकामनाओं के सिवाय, तुमको हमारी दुआ लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मुझे जो खुशी है तुम्हें क्या बताएं, उम्र 100 साल हो ये मेरी दुआ है। कभी जिंदगी में कोई गम ना आए, खुदा हर बुरी नजर से बचाए, तुमको हमारी दुआ लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें आज क्या दे दुआ के सिवाय, तुम्हें आज क्या दे शुभकामनाओं के सिवाय, तुमको हमारी दुआ लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी दुआ लग जाए। हमारी मैरिज को अभी 47 ईयर्स हो गए हैं। एक बात जो मैं कई बार कहने की मैंने कोशिश की लेकिन आज तक कह नहीं सकी, आज ये बात मैं सबके सामने कह रही हूँ। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा, ओ जीवन अपना सारा, ओ प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तू हमारा, है तू हमारा। ला 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 ला। थैंक यू। Okay, so now पापा, आपके लिए कुछ भी कहना आसान कहाँ है, क्योंकि थोड़े शब्दों में मेरे पापा की पहचान कहाँ है। आज के दिन मेरे रियल लाइफ हीरो मेरे पापा ने इस दुनिया में धमाकेदार एंट्री मारी थी। वैसे पापा मेरे लगते बिल्कुल हीरो की तरह हैं। ही लुक्स हैंडसम ना, इवन पिक्स भी हीरो वाली पोज में क्लिक करवाई हैं। आज पता चला कि गरिमा को डिफरेंट पोजेस में फ़ोटोज़ क्लिक कराने की आदत किससे मिली है। मॉम एंड डैड दोनों की हनीमून पिक्स भी कंप्लीट बॉलीवुड स्टाइल हीरो हीरोइन की तरह है, मैडली इन लव विद ईच अदर एंड स्टिल गोइंग ऑन। शी इज़ द वन हु वॉक दैट एक्स्ट्रा माइल इन सपोर्टिंग हर हस्बैंड एंड गाइडिंग हर फैमिली। हम यही प्रे करते हैं कि ये प्यार हमेशा बना रहे। मेरे डैड रियल लाइफ हीरो के साथ साथ रियल लाइफ हीरो भी लगते हैं, एकदम परफेक्ट। मेरे पापा के बहुत किस्से हैं, कुछ फ़नी तो कुछ मेमोरेबल तो कुछ कोई सीख देने वाले।
हर बच्चा अपने पापा से कुछ सीखता है। इसी तरह मेरे पापा ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे कैसे अपने फादर की डेथ के बाद छोटी उम्र में किताबों में जिल्दें चढ़ा के उन्होंने अपनी पढ़ाई अपने बलबूते पे पूरी करी, जिसने हमें स्ट्रगल और मेहनत को वैल्यू करना सिखाया। जब नौकरी लायक बने तो उनका एक किस्सा याद आ गया मुझे, जो उन्होंने हमें बताया था कि कैसे उस टाइम पर वो जॉब ढूंढने के लिए 6-7 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे, और कैसे जब वॉचमैन उन्हें अंदर नहीं आने देता था तो वो अपने बायोडाटा उसे पकड़ा के आ जाते थे। कोई वॉचमैन उनके सामने ही उसे वहीं फेंक देता था, तो कोई फाड़ देता था, तो कोई लेके सिर्फ रख लेता था, अंदर भेजते ही नहीं थे। पर पापा ने हाँ नहीं मानी। हर थोड़े दिन में वो दोबारा पहुंच जाते थे और दोबारा उन्हीं गार्ड्स को बायोडाटा पकड़ा देते थे। एक बार एक गार्ड ने लेने से मना कर दिया, तो पापा ने बोला कोई बात नहीं यार, इससे हाथ पोंछ लेना या रास्ते में फेंक देना, पर रख तो लो। उस दिन गार्ड को बहुत एहसास हुआ और उसने बायोडाटा अंदर पहुंचा दिया, और इस तरह पापा को अपनी पहली नौकरी मिली। और उनकी इस बात ने हमें ये सीख दी कि लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए और स्ट्रगल को एंजॉय करना चाहिए, ना कि हार मान के स्ट्रेस लेना चाहिए। बचपन में सोते समय वो हमें कहानियाँ सुनाते थे, पर सिर्फ परियों की नहीं, ऐसी कहानियाँ भी जिसमें हमें मॉरल वैल्यूज़ के लेसन्स मिले, जिससे हमें एक अच्छा इंसान बनाने का लेसन मिले और लाइफ जीने का मंत्र। मुझे इनकी एक कहानी हमेशा याद रहेगी, अ फादर, अ सन एंड देयर डोंकी। आई एम श्योर आप सबने भी सुनी होगी बचपन में, जिन्होंने सब कुछ खो दिया अपनी जजमेंट और अपनी सोच पे विश्वास रखने के बजाय लोगों की बात सुनकर। इस कहानी से जो लेसन उन्होंने हमें सिखाया वो आज तक हमारे काम आता है, कि लोग तो आपको पीछे खींचेंगे लाइफ में, इसलिए सुनो सबकी, पर करो वही जो हमें सही लगे। इस मंत्र ने हमें बहुत हेल्प किया लाइफ में, खुश रहने में और अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीने के लिए, क्योंकि अगर हम खुश होंगे तो हमारे अपने आप खुश हो जाएंगे। उस ज़माने में जब फादर्स इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं होते थे, उन्होंने उस टाइम पे हमें हर फील्ड का एक्सपोजर दिया और अप टू डेट रखा। उनका एक रूल था कि हर सैटरडे रात को मूवी नाइट होती थी और बाहर से डिनर ऑर्डर करते थे, जिससे हमारे अंदर उन्होंने अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना और मस्ती करने का जज्बा जगाया, और हमारी बॉन्डिंग एज अ फैमिली और स्ट्रांग हुई। समर वेकेशंस में हम गेम्स खेलते थे पापा मम्मी के साथ, जिसकी वजह से हम उनके बहुत क्लोज हुए और एज ए फ्रेंड रहते थे और हर बात शेयर करते थे बिना किसी हेजिटेशन के। जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने बुक से हमारी दोस्ती करा दी, जिसकी वजह से हमारी लाइफ की नॉलेज बढ़ी और जिसने हमें लाइफ को, लोगों को और रिश्तों की ज़्यादा अच्छी समझ दी, हमें सेंसिटिव बनाया और दुनिया देखने का एक अलग नज़रिया दिया। पापा मम्मी, मैं और मेरी सिस्टर, हम चारों एक दूसरे से अलग हैं, कभी एक डिसीज़न पे आ ही नहीं पाते, पर यही तो ब्यूटी है इस रिश्ते की। हम चारों अलग हैं अपने वे में और फिर भी साथ हैं। हमारे बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बट पापा ने कभी हमें रोका नहीं। शायद इसी वजह से हम में हिम्मत है आवाज़ उठाने की गलत बात पे और अपना ओपिनियन रखने की। उन्होंने हमें कभी रोका नहीं अपने डिसीज़न लेने से। हाँ, प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर बताते थे, पर अपना डिसीज़न हम पे कभी फोर्स नहीं किया। बस एक बात बोली, अगर डिसीज़न खुद ले रहे हो तो उसे ओन अप करने की हिम्मत रखो। अगर गलती है तो रिग्रेट करने की जगह उसे एक एक्सपीरियंस की तरह लो, उसे लेसन सीखो और आगे बढ़ो और बेटर डिसीजंस लो, जो कि हम आज तक फॉलो करते हैं और उसी वजह से हम आज इतने मेंटली स्ट्रांग हैं। एज ए फैमिली हमने बहुत कुछ देखा लाइफ में, बहुत अनफॉर्चुनेट एंड ट्रैजिक इंसिडेंट्स हुए लाइफ में, बट ये पापा की अपब्रिंगिंग ही है कि हम दोनों आज भी खड़े हैं, ऑल स्ट्रांग एंड स्माइलिंग। We have learned a lot through his experiences in his life and the way he inculcated moral values in us. So today, we thank you, Dad, for helping and supporting us in our crucial decisions. Thank you for making us understand the value of hard work, making us a better person, teaching us to treat everyone equal, making us mentally strong to own up our mistakes and face any kind of situation in life. Thank you for giving us different perspective of world. Thank you for not only being there for us in our good and bad times, but also for making our bad times good with your amazing love and support. I don't know if I am your definition of a perfect child, but you are my definition for a perfect dad. You are the biggest celebrity in my life. We all love you, and me and my sis pray and want you as our father in every life.
We wish you health and happiness for your coming years and have a very happy birthday. Thank you so much for being there for us. This one's for you, Dad. I'm also a part of it, so I'm going. So, okay, हम लोग steps भूल सकते हैं क्योंकि रहेगा हमें, so don't make fun of us, it's just for you. So just enjoy. चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरे मन का टुकड़ा हूँ, तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे।
Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. The roundabout me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, oh happy birthday to you, happy birthday to you। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका। क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, oh happy birthday to you, happy birthday to you।
ये हमारे दोनों बेटियों ने मेरा आज बहुत अच्छा बना दिया मेरा बर्थडे। मुझे नहीं पता था, मुझे खाली एक मेरे से प्रोफेशनल चीज़ों के लिए मुझे बोला था, मैंने बता दिया। बाकी सब इनके अपनी कारस्तानी है और मुझे भी नहीं पता था कि ये सब कर। मैं वाकई इन दोनों बच्चों को और बच्चों की माँ तीनों मामा जी चारों बच्चे, दोनों बच्चे नहीं। इन तीनों को तो कहने की बात ही नहीं है। शकुंत ने बोल ही दिया है कि प्यार करती है तो मैं उनसे डबल प्यार करता और हेमंत अनुज कहाँ, हेमंत कहाँ है भाई? हाँ, हेमंत अनुज और गरिमा पल्लवी, ये सब ने मिल के मेरे बर्थडे को एक अच्छे सेलिब्रेशन का वो दे दिया है। मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा है। एक्चुअली उन्होंने कुछ तो मुझे सेंटिमेंटल ही कर दिया। एनीवे मेरे सेंटी एक्चुअली पापा मम्मी के गाने सुनते हैं। बाकी सब मैं अपने एक गाना आपकी तरफ से मैं खाना खाए बिना बगाना नहीं चाहता। कैसे देख रहे कि एक गाना तो बनता है। मैं खाना खाए बिना बगाना नहीं चाहता, लेकिन ये सब नहीं करूँगा। थैंक यू। मेरे पुराने साथी सिंह साहब शायद 1978-89 से साथ हैं। दीक्षित जी 1978 से, मनीष गुलाटी 92 से मेरे ख्याल साथ में थे। रवि गुप्ता के साथ मेरा अच्छा इंटरेक्शन हुआ है, 2010 में हुआ है। राजेश तो हमारे छोटे भाई की तरह, दिनेश जी तो हमारे लिए सब कुछ है। दिनेश जी ने बहुत कुछ हमारे लिए किया और बाकी सब, अनिल जी आगे आ जाओ। अनिल जी ने मुझे जितना विंड पावर के लिए अनिल जी ने मुझे सिखाया है, मैं जो है उस चीज के लिए वाकई इनका शुक्रगुजार हूँ। इन सब के पूरी मुझे मदद मिली है, पूरा इनका आशीर्वाद कहो, कुछ शुभकामनाएं कहो, सब कुछ मिला है, जिसकी वजह से मैं ये 55 साल अपने कैरियर को आगे बढ़ा पाया। अभी भी जितना संभव हो गए करता रहूँगा। अभी भी गवर्नमेंट की एक कंपनी है स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब, उसमें एडवाइजर बनाई दिया है इन्होंने। और बाकी है तो आपने देख ही लिया था कि मैं एक रिपोजिटरी बेंच के ऊपर तैयार कर रहा हूँ जो हर महीने अपडेट होती रहती है। ये सब जो है आप लोगों के दुआओं का, सबका असर है कि मैं कुछ कर पा रहा। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है ये लगा रहे हैं खाना वाना, उसमें खा के बिना खाने पूछा नहीं निकलना है। मैं मेरा गाना तो मुझे अच्छा लगा ना, आप सोचिए इस वक्त के लिए है नहीं। हाँ, एक जो भी आपकी इच्छा नहीं, एक आप लोगों ने गाना सुना, जहाँ भी मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। मैं उल्टा ही बोल रहा हूँ।
इसको मुल्तानी में थोड़ा सा ट्राई किया था, जितना भी मेहंदियाँ उठाई धोके हमने हो, चोरी चोरी मेरे दिल विच ढांडे हो, ये तो दसो मेरे कौन हो। क्या है कि हमारे पेरेंट्स जब पंजाब पाकिस्तान से आए थे तो वहाँ मुल्तानी बोली जाती है। वो लोग आके उनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, अपने फादर से उर्दू भी सीखी है। और हालांकि मैं अब लिखने की प्रैक्टिस नहीं रही तो अलग बात है, थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ। ये सब जो है वक्त ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो जितनी तनया साहब की जर्नी आपने अभी स्क्रीन पे देखी, तो उसमें ये 4-5 स्टेप ले चुके थे। इंडिया इंसुलेटर, कंस्ट्रक्शन, ऑयल, और लास्ट में ये HEG में मार्केटिंग में आए मेरे बॉस उस समय। तो स्मॉल गार्डन मार्केटिंग स्टार्ट करी, हमारे राजेश गोयल जी है, लिखी गया स्मॉल गार्डन के, इन्होंने हमें सिखाया। मुझे पता है पेट में कैसे माल बेचते हैं, वो कौन थे जो पैसे नहीं देते थे। लेकिन मैं तो अभी तनया साहब के पर्टिकुलर पॉइंट पे आऊँगा ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको फील करना। कहाँ से अभी आपने उनकी जर्नी देखी, इंसुलेटर, कंस्ट्रक्शन, ऑयल, और भी कुछ नहीं है। ये HEG से प्रायर टू HEG है, उसके स्मॉल गार्डन, चलिए साहब फिर कुछ इलेक्ट्रोड भी करने लगे, चलिए साहब अब इलेक्ट्रोड खत्म हुए तो पावर में चले गए। पावर में मतलब विंड, सोलर, he learned. What is important is he learned every business. At 60, at 75, even today he does not cease to learn. ये इंपॉर्टेंट बात है, हर धंधा सीखा, हर ट्रेड सीखी और उसमें मास्टरी करी और अच्छा करके दिखाया। जो भी काम कंपनी ने दिया रिमार्केबल तरीके से करके दिया, और हर जगह इन्होंने अपनी एक पर्सनल बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त बनाई लोगों से। मैं भी सुन के इमोशनल हो रहा था। मतलब इन्होंने मेरे को पहले तनया साहब का आया, फिर गरिमा का आया। मैं अब यहाँ नहीं रहता, मैं भोपाल में रहता हूँ। मैंने वो डेट मार्क करके रखी, इस डेट आई हैव टू बी हियर। उन्होंने बुलाया है, 15 साल बाद बुलाया, लेकिन मैं आऊंगा, आई विल कम नो मैटर व्हाट। और मैंने मीटर को ऑफिस से पिक किया, आई मेड माई प्लान इन सच अ वे कि 15 तारीख को मैं यहीं पाया जाऊँ। सो आई मेड इट लुक नेचुरल। ये मीटिंग है मेरी, दिल्ली में ये मीटिंग है, 2-4 लोगों को मीटिंग करने की बुला लिया, आ जाओ मैं मीटिंग करना चाहता हूँ, ताकि मेरे को बहाना बने एक हफ्ता यहाँ रहने का। और 15 मीटर बोला भाई सुबह ढंग के कपड़े पहन के जाना, क्योंकि आई विल पिक यू अप फ्रॉम ऑफिस, वी डू नॉट हैव द टाइम टू गो होम। सो आई पिक यू अप फ्रॉम ऑफिस, वी कम हियर। तनया साहब ने बुलाया है, एक फोन किया, मैंने कहा सर मैं जरूर आऊंगा, नो मैटर व्हाट। एंड सच अ रिमार्केबल ह्यूमन बीइंग। मतलब यही कमाया इन्होंने कि मतलब 15 साल हो गए रिटायर हुए, और एक फोन पर लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सभी लोग आए हैं। बीपी सिंह साहब, दीक्षित साहब, राजेश, कोई लेना देना नहीं, ऑफिशियल कुछ लेना देना नहीं, वो प्यार है। जो वो प्यार नहीं छोड़िए, मेरी तो शादी में आए थे, मतलब स्पेशली आगरा तक मेरी शादी में आए, डॉटिंग में मीटर अपनी स्टार्टेड कराई। तो मतलब इतने हम इमोशनल है, और दुनिया भूल जाए मेरे को बर्थडे विश करना, बट तनया साहब कभी नहीं भूलते। मतलब एक रियली मतलब रिमार्केबल है। बर्थडे के दिन सुबह सुबह मनीष हैप्पी बर्थडे, that's it, that's why we here, because we love him so much. Such a wonderful, remarkable human being. I salute you, sir. Thank you so much. और मैं सभी पार्टी पे भी आऊँगा। मनीष मेरे साथ मेरे कोलीग की तरह शुरू में रहा है 1992 एज ए ट्रेनिंग वो किया था, और मुझे बहुत खुशी है, गर्व है कि आज ये HEG प्लांट का HEG के लिए ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो हाईएस्ट पोस्ट है HEG की आफ्टर द चेयरमैन, वो एडॉप्ट किया। दैट इज गुड थिंग फॉर मी।